Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 12 students. Due to corona pandemics, as you all know, many of the lesson from 1 to 16 is eliminated out from the session 2020-21, and the remaining portion is very important because the marks are not reduced. As you all know, the marks of theory remain 70 and the marks of practical remain 30. So the importance of lesson that is remain after the elimination is become greater. So as you all know, chapter 1 is eliminated, and after elimination of chapter 1, the next chapter that are eliminated from our syllabus is the chapter number 7. And after the chapter number 7, that is evolution, the next chapter, that is the chapter number 9, strategies of enhancement in food production. And after elimination of chapter number 7, 9, and there will be the no chapter after between the 9, that is the 10, 11 and 12 will as usual. Here I am going to talk about chapter number 30, organisms and population. Actually the chapter is totally based on the geographical patterns and the geography and the ecology, ecosystem, etc. That is very little concepts of biology, and about 90% of the topic consists the geography as well as the constituents of the ecosystem. I will talk about the major concepts that are actually extracted from the overall lesson, that is organisms and population. In order to make you perfect note, there is need to clear cut concept for the each topic. So be patient and watch the video carefully till the ends in order to make your very clear cut notes. Here I have a topic. That topic is concepts of organisms, concepts of population, interaction of biotic and abiotic components in our environment, the ecological organization, biotic components, what is the biotic components and what are the abiotic components. In this video session, in this video lecture, I will cover all the 5 topics. These 5 topics will absolutely cover in this video lecture. So video lecture for you is very important. Now one by one I will describe about each and every points. Here the concepts of organisms. What do you mean by organisms? Let I give you an example. You are the organisms. How can you define yourself as organisms? Keep in mind, organisms are the important components of biospheres. The individual components of biospheres are known as organisms. As you all know, our atmosphere has a biotic and abiotic components. The biotic components, the major biotic components of atmosphere form the biospheres. मीन्स पूरे एटमॉस्फेयर का वो जगह जहां पे कोई ना कोई लिविंग बीइंग रहता है उसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और वो बायोस्फीयर्स बनाता है. चाहे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे एल्गी हो, चाहे बड़े बड़े प्लांट्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स दिख रहा हो चाहे न दिख रहा हो, जितने भी जहां पे हमारा ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब बायोस्फीयर्स है. और बायोस्फीयर्स का जो यूनिट है ना वो ऑर्गेनिजम्स पे ही खत्म होता है. तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट ऑफ आवर बायोस्फीयर्स are organisms. So here organisms may be defined as the specific units of biospheres. The specific unit of biospheres called organisms. The specific unit of biospheres called organisms. मतलब ये पूरा बायोस्फीयर्स है और इसके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक, ये जितने भी यूनिट्स है ना, फंक्शनल यूनिट्स, देयर विल बी द बायोस्फीयर्स. स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ बायोस्फीयर्स, देयर विल बी द ऑर्गेनिजम्स. सो ऑर्गेनिजम्स आर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर्स. जितने भी तरह से चाहे इसको लिख सकते हैं, ठीक है. The individual components of biospheres, the structural units, functional units of biospheres are the organisms. ठीक है. Organisms may be the microscopic or macroscopics. It need to describe by you in your own language by means of their category. So your concept regarding organisms I think is clear. Your first heading for this chapter will be concepts of organisms, and how can you define the organisms as a concept? There will be on the basis of biospheres. These are the overall biospheres. ठीक है. तो आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं. ये पहला जो हेडिंग है इसको आप क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये कम से कम हाफ पेज में कवर हो जाना चाहिए. ठीक है. मैक्सिमम जितना आप लिख सकते हैं अपने दिमाग से,
वीडियो लेक्चर देखिए, जितना लिख सकते हैं, ठीक है, वही आपका कमाई है। बाकी आप तो रेडीमेड आइटम्स बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे वे है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी बातें समझ लीजिए कि आप जो चीज़ें मेरे से पढ़ रहे हैं, या जो चीज़ें बुक से पढ़ रहे हैं, या जो चीज़ें आप वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उन सबको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो आ रहा है वही एक्चुअल में आपका नॉलेज है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। One organisms along with the similar kinds of organisms form the population. The similar types of organisms that form a group, there will be the population. अब population human का human से बनेगा, human का mango tree के साथ कोई population नहीं होगा, ठीक है। Population means similar types of organisms, यानी कि group of organisms में ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। ऐसा नहीं है कि आप जो है पर्टिकुलर कहीं पे फॉक्स को ले लें, लोमड़ी को, और उसके बगल में बफेलो है तो वो दो मिल करके एक पॉपुलेशन, नहीं, फॉक्स की अलग पॉपुलेशन, बफेलो की अलग पॉपुलेशन। बफेलो जो आपके यहाँ उसकी अलग पॉपुलेशन, बफेलो जो ऑस्ट्रेलिया में उसकी अलग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ग्रुप ऑफ specific organisms in a particular geographical area, आप इसको भी लिख सकते हैं एज अ डेफिनेशन, क्योंकि आपके पास अगर दिमाग है तो और करके अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये बनाए गए डेफिनेशन जिसको आप लिख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। कुछ चीजों के डेफिनेशन नहीं होते, कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का हो गया, ऑर्गेनिजम्स का हो गया। आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई। पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट में ये रखें कि ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स। स्पेसिफिक मीन्स अगर काऊ का है तो बफेलो के साथ पॉपुलेशन में नहीं काउंट करें। ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर हम ये मान रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन 1 अरब 35 करोड़ है, तो उसमें गाय, बकरी, भैंस नहीं जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सिर्फ जो है इंसानों का, और वो इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे। इंडिया में अगर कोई बाहर से अमेरिकन घूम रहा है तो उसको भी नहीं काउंट करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखा हुआ है, पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, यहाँ पे भी आप काउंट करेंगे कि वो एक पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट, तुम्हारा कंपोनेंट्स हो, जियोग्राफी का कंपोनेंट्स हो, जैसे कंट्री हो, ठीक है, और ये तुम्हारा जो है कॉन्टिनेंट्स हो, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स लेवल पे भी पॉपुलेशन काउंट किया जाता है, वर्ल्ड लेवल पे भी पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो कहीं का भी इंडिविजुअल हो, कहीं भी हो, उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पॉपुलेशन की चीजों को, 2 चीजों, पॉपुलेशन में 2 चीजों को ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक चीजों को ध्यान में रखना था, ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। पॉपुलेशन में 2 चीजों को ध्यान में रखना है। क्या रखना है? स्पेसिफिक होना चाहिए और एक जियोग्राफिकल एरिया उसका फिक्स होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कोई इंडिया का आदमी है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन काउंट हो रहा तो उसको भी काउंट कर लेंगे, नहीं। तो 2 चीजें क्लियर हो गई। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी, ऑर्गेनिजम्स का और तुम्हारा पॉपुलेशन का, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद मैं बात करूंगा interaction of biotic and abiotic components. What called specific interaction between biotic and abiotic components? There will be the ecosystem. Ecosystem means the interaction between the biotic and abiotic components. आप कहीं भी रह रहे हैं, आपका abiotic components के साथ interaction होना जरूरी है, तभी आप जो है survive करेंगे. Without abiotic components, your life is not possible. Why? For example, soil. Your interaction with soil is since your beginning of your life. Keep in mind. What are the importance of soil? Soil provides the base for growing plants, and plants support your life. The other kinds of abiotic components is the water. There is no matter. What about the importance of water in our life? The air and sunlight. These are the abiotic components that directly or indirectly influence your life's phenomenon. So what about the importance of abiotic and biotic components? There is no need to explain. That is all about understanding criteria, that is standard understanding criteria that can be defined by you.
But keep in mind, abiotic and biotic components are actually interact to the particular geographical area, form a system, and that system is known as ecosystem, and the study of ecosystem is known as ecology. So here the ecological organization. I think interaction of biotic and abiotic components should write by you by through the one page. इसको one page में लिखिए. What are the interaction between biotic and abiotic components? There will be the ecosystem and the study of ecosystem. देखो ecosystem हम पढ़ते, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगला लेसन गायब है. चैप्टर 14 इकोसिस्टम इस साल नहीं पढ़ना है, सीधे चैप्टर 15, 16 भी नहीं पढ़ने, 16 भी नहीं पढ़ने हैं. तो ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइज, ये यहाँ पे बात करो, इसमें कितना लिखना हो, क्या लिखना है, इसको मैं बता दूँ. बाकी ये दोनों चीजें तो क्लियर है. कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन. इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें आप ये लिखिएगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स इन आवर लाइफ. तो एयर, वाटर, सब सारी चीजों के बारे में लिख डालेंगे. कैसे ये भी लिखेंगे, सनलाइट का हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ में क्या रोल है, कैसे ये भी लिखेंगे. ठीक है, आई होप इसको कर ले जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम. 12 स्टूडेंट है, 12 लेवल के स्टूडेंट है, एक स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें बायोटिक का ऑर्गेनाइजेशन क्या है और एबायोटिक का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कितना ग्रुप हम बायोटिक में यानी लिविंग कंपोनेंट्स में कितना ग्रुप बना सकते हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे. और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये भी कंपोनेंट्स है, ये भी कंपोनेंट्स है. वाटर में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब सारी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम बायोटिक कंपोनेंट्स को एक एक पॉइंट को टच करेंगे. देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स में जो यूनिट है ऑर्गेनिज्म, सबको पता है. ऑर्गेनिजम्स मिलकर के पॉपुलेशन बनाता है, पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी बनाता है मिलकर के क्या बनाता है, बायोम्स. सो एक एक करके सारे के बारे में डिस्कस करूंगा. फिलहाल आप जो है ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन को समझ चुके हैं. अब सीधे हम आते हैं कम्युनिटी और बायोम्स पे. ठीक, अब आते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं. Our heading should be the community and biomes. Now the third, community. First was the organism, second was population, and third is still pending, that is community. And let us talk about the community. So you should write about the definition of community, that is groups of specific living organisms by means of plants and animals. Group of specific living organisms, example plants and animals, that occupy very specific geographical habitats, called community. Groups of specific living organisms, that is plants or animals, that occupy very specific geographical habitats called community. It means two terms you would like to remind. Listen, the first, the specific habitat, specific living beings, and second is specific geographical habitats. ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग, मैंने बताया था कि पॉपुलेशन होता है जब वो किसी पर्टिकुलर एरिया में, एक पॉपुलेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी. ठीक है, प्लांट्स की कम्युनिटी. जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंगो प्लांट्स है, मैंगो का बहुत सारी वैरायटी है. ठीक है, कुछ चौसा है, कुछ अल्फांसो है, कुछ दशहरी है. तो एक मैंगो की कम्युनिटी चौसा की हो गई, दूसरे की, माने मैंगो में बहुत सारे वैरायटी मिल गए, तो मैंगो का एक क्या मिल गया, पॉपुलेशन. अब मैंगो के अलावा नीम का पॉपुलेशन है. ठीक है, इमली का, टेमारिड का पॉपुलेशन है. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स का पॉपुलेशन. तो इकट्ठे क्या बोलेंगे, प्लांट्स कम्युनिटी. एनिमल्स में देखो, टाइगर की अलग पॉपुलेशन है, लायन का अलग पॉपुलेशन है, डियर का अलग पॉपुलेशन है, विल्डर बीस्ट का अलग पॉपुलेशन है, क्रोकोडाइल का अलग पॉपुलेशन. तो
तो सबको कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स पॉपुलेशन और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के ग्रुप जो स्पेसिफिक एरिया को कवर करते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ये कम्युनिटी प्लांट्स की हो सकती है, ये कम्युनिटी एनिमल्स की हो सकती है। सपोज दैट द प्लांट्स कम्युनिटी एंड एनिमल्स कम्युनिटी, एनिमल्स कम्युनिटी। ये प्लांट्स की कम्युनिटी को स्पेसिफिक टर्म दिया गया है फ्लोरा, फ्लोरा, एंड एनिमल्स कम्युनिटी आर कैटेगराइज्ड एज द fauna. So here the flora and fauna are the two specific terms given for the two specific community for plants and other for animals. So your concept regarding the specific organisms is clear. Now back to the specific geographical area, that is the natural area. अगर आप एक गाय को पकड़ लें, बहुत सारे गायों को पकड़ के एक जगह पे अपने घर के चार दीवारी के अंदर उसको फिक्स रख दे, पैकअप कर दे, तो वो पॉपुलेशन, वो कम्युनिटी जो है नेचुरल नहीं रह जाएगी। ठीक है, कम्युनिटी तो बन जाएगी लेकिन वो जबरदस्ती वाली कम्युनिटी रहेगी। यहाँ पे मैं कम्युनिटी की क्या बात कर रहा हूँ? नेचुरल अकरिंग हैबिटेट्स की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? सीधे सीधे आप लिखिए कि इंडिविजुअल यूनिट्स है तो ऑर्गेनिजम्स, उसके ग्रुप को पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ढेर सारा है और एक कम्युनिटी एक तरह का है। जैसे मान लो कि मैंगो है तो प्लांट है, एनिमल्स तुम्हारा दूसरा कोई प्लांट, जैसे मान लो कि पीपल का प्लांट्स है, ठीक है, पीपल का, इसके अलावा टेमारिड्स का है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके एरिया में, तो प्लांट्स की अलग अलग कम्युनिटी, प्लांट्स की अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाएंगे? एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जिसको बोलेंगे फ्लोरा। ऐसे ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है, उसके आसपास गायों की कम्युनिटी, गायों का पॉपुलेशन है, ठीक है, बकरियों का पॉपुलेशन, सब मिलकर के एनिमल्स का कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी एक ब्रॉड लेवल का टर्म्स है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में नहीं बात करेंगे, बहुत बड़े एरिया में चले जाएंगे तो बायोम्स है। ठीक, तो ये आई होप आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब आते हैं बायोम्स की मैं बात कर दूं। यहीं पे बायोम्स के लिए थोड़ा सा जगह लेना पड़ेगा, इसको मैं इरेज करके फिर बायोम्स की बात डिस्कस कर दे रहा हूं। नाउ द बायोम्स, बायोम्स कैन बी डिफाइंड एज द लार्ज नेचुरल occurring habitats of flora and fauna. Simply we can say that the large natural occurring habitats of living community is known as biomes. The large natural occurring हैबिटेट्स ऑफ लिविंग कम्युनिटी इज नोन एज बायोम्स। इसके पहले क्या पढ़ा कि प्लांट्स की कम्युनिटी क्या है? फ्लोरा। फ्लोरा मींस प्लांट्स कम्युनिटी एंड फना एनिमल्स कम्युनिटी, एनिमल्स। तो दो स्पेसिफिक कम्युनिटी जब आपस में किसी पर्टिकुलर हैबिटेट्स में, देखो ये भी पॉसिबल है कि किसी पार्टिकुलर हैबिटेट्स में प्लांट्स सरवाइव कर रहा है तो उसके पास कुछ एडॉप्टेशन है, और उसी पार्टिकुलर हैबिटेट्स में एनिमल सरवाइव कर रहा है तो उसका अलग एडॉप्टेशन है। लेकिन ये पॉसिबल है कि जिस हैबिटेट्स में प्लांट्स हैं उसका यूनिक हैबिटेट्स है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज, बहुत सारे ऐसे हैबिटेट्स हैं जहाँ पे प्लांट्स है, एनिमल्स भी है, दोनों का एडॉप्टेशन अलग अलग, क्योंकि वो प्लांट्स है तो प्लांट्स एडॉप्टेशन होगा, एनिमल्स है एनिमल एडॉप्टेशन। फॉर एग्जांपल हम डिजर्ट्स की बात करें तो डिजर्ट में जो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो प्लांट्स में जैसे स्पाइनी लीव्स होते हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है उसमें वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। तो ये तो प्लांट्स का फीचर्स है। क्या डिजर्ट में एनिमल्स नहीं रहते हैं? रहते हैं, तो उनका अलग एडॉप्टेशन हो जाता है। तो एक पार्टिकुलर हैबिटेट्स में प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी को, उसके पार्टिकुलर हैबिटेट्स को हम बोलेंगे बायोम्स। ठीक है, बायोम्स का मतलब ये होता है कि वहां पे जितनी भी कम्युनिटीज है, अगर उसमें स्पेसिफिक कंडीशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी है तभी तो वहां रह रहे हैं। एक्वाटिक में हम प्लांट्स की मैं बात करूं, निम्फिया, पिस्टिया, लोटस, ठीक है, वाटर लिली, ये सब स्पेसिफिक जो है एक हैबिटेट्स को फॉलो करते हैं। वो क्या हैबिटेट्स है? वाटर। क्या वाटर में एनिमल्स नहीं रहते? रहते हैं, उनका अलग एडॉप्टेशन है। अब उसमें फोटोसिंथेसिस थोड़ा ना होगा। तो कहने का मतलब है कि पार्टिकुलर किसी हैबिटेट्स में दो अलग अलग कम्युनिटी की जो
हैबिटेट्स होते हैं, कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उस हैबिटेट्स को, बहुत बड़े हैबिटेट्स को, बहुत बड़े लेवल के हैबिटेट्स को बोलते हैं बायोम्स, छोटे मोटे नहीं, जैसे पॉन्ड की स्टडी कर रहे हो वो नहीं, किसी लिविंग, बहुत बड़े लिविंग कम्युनिटी की मैं बात करूं, बहुत बड़े लिविंग हैबिटेट्स की मैं बात करूं, छोटे हैबिटेट्स की नहीं, जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा कम्युनिटी की स्टडी कर रहे हैं और एक तरह का सर्वाइवल है वहां पे, एक तरह का वहां पे फीचर्स है, सब एक ही तरह के एबायोटिक कंपोनेंट से फाइट कर रहा है, कोप कर रहा है, तो वो क्या है, बायोम्स है। ठीक है, तो ये हम दोनों की कलेक्टिव स्टडी, ये दोनों के लिए कलेक्टिव जो टर्म्स देते हैं वो क्या होता है, बायोम्स। ठीक है, सो बायोम्स आर द नेचुरल अकरिंग हैबिटेट्स, यानी कि ये नेचुरल अकरिंग हैबिटेट्स में है और फ्लोरा भी इसका, यानी कि प्लांट्स की कम्युनिटी भी नेचुरल अकरिंग हैबिटेट्स में है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक ही तरह के हैबिटेट्स में है और इसको जो है हम किसमें स्टडी करेंगे, बायोम्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, इसको मैं समझा दे रहा हूं और उसको इरेज करके। ठीक है, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, इस पे डिस्कस करते तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 मेजर बायोम्स है इंडिया के, मेजर जो बायोम्स है यानी कि लिविंग हैबिटेट्स है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस की, वो 4 है, ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट, deciduous forest, desert, sea coast, सबके बारे में अलग अलग मैं बता रहा हूं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स द हैबिटेट्स ऑफ लिविंग बीइंग वेयर थ्रू आउट द ईयर्स द रेन इज डोमिनेंट। एक यूनिक वेदर पैटर्न्स नहीं होता है, मतलब एक यूनिक पैटर्न्स ही होता है, सॉरी एक यूनिक वेदर पैटर्न्स होता है, ऑलमोस्ट पूरे साल या तो गर्मी पड़ेगी या तो ठंडी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिखा हूँ यहाँ पे ये मेजर बायोम्स इंडिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, पूरे साल ऑलमोस्ट कहीं कभी न कभी पूरा दिन जो है, रोज कभी एक आध बार जो है बारिश हो जाता है, यानी पूरे साल जो है रेन ही डोमिनेट करता है, ठंडी पड़ेगी गर्मी पड़ेगी लेकिन एक आध बार रेन जरूर होगा, यानी कि थ्रू आउट द ईयर्स द particular area that is characterized by the rain are called as tropical rain forest। इंडिया में कौन कौन से पार्ट है, ये है आपका उड़ीसा, आसाम एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ ऐसे पार्ट है जहां पे एक आध बार बारिश हो जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी आता है इसमें, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। इसके अलावा डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये अनकॉमन वेदर है, यानी कि ये थ्रू आउट द ईयर एक जैसा वेदर पैटर्न्स रहता है। वेदर में यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये कौन कौन से हैं, यूपी, एमपी एक्सेट्रा, बिहार एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऐसे पार्ट हमारे इंडिया के जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर एक जैसा वेदर पैटर्न्स नहीं रहता है, बारिश भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, हर चीज होता है। ठीक है, आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा तब जाके एग्जाम कर लीजिए। डिजर्ट तो आप जानते हैं थ्रू आउट द ईयर एक तरह का पैटर्न्स रहता है, वो पैटर्न्स अगर किसका है, वो पैटर्न्स अगर गर्मी का है, ठीक है, हीट का है तो वो डिजर्ट है। एग्जाम्पल आप जानते हैं राजस्थान, ठीक है, फ्यू पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ठीक, सी कोस्ट एरिया में आप क्लियर है कि यहाँ पे पूरा साल वेदर अफेक्टेड होता है, वो डिपेंड करता है कि समुद्र से उठने वाली जो हवाएं हैं, उनसे उठने वाले जो तमाम तरह के साइक्लोन्स हैं वो कैसे हैं, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यानी कि द पार्ट ऑफ इंडिया वेदर अफेक्टेड बाय द सी कोस्टल एक्टिविटी और द एक्टिविटी ऑफ ओशियन एंड सी, दैट इज द सी कोस्ट। इसमें क्या क्या जाएगा, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एक्सेट्रा, these are the some part of India where the sea coastal activities are actually common. I hope your video is actually your concept regarding the community, regarding the population, organisms, biomes is clear. In next video lecture I will describe you the global distribution of biomes, the global distribution of biomes. Keep in mind, you should make your concept regarding the global distribution of biomes. Keep in mind. Thank you.